Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Air, Water and Weather. Let's learn about weather, air, sea breeze and land breeze, evaporation, condensation, water cycle, purification of water. Weather. The weather changes from day to day and can even change from hour to hour. It may be bright and sunny in the morning and cloudy in the afternoon. When the sun rises or sets, its rays are slanting, so morning and evening are crude. At noon, the sun rays fall directly on the earth, therefore the noon is the hottest part of the day. Cloudy, windy, rainy, hot, cold, humid, all these terms tell the different conditions of the atmosphere around us. This is called weather. The weather is the condition of the atmosphere at a given time. आपको पता है weather हर दिन change होता है, even हर घंटे change होता है. अगर मॉर्निंग में ब्राइट और सनी है तो हो सकता है आफ्टरनून में क्लाउडी हो जाए. तो जब सन राइज करता है और सेट होता है तो उसकी रेज स्लांटिंग होती है. तो इसकी वजह से जो मॉर्निंग और इवनिंग होती है वो कूल होती है और नून आपका हॉटेस्ट पार्ट होता है देखा. आपका जो क्लाउडी, विंडी, रेनी, हॉट, कोल्ड, ह्यूमिड, ये सारी ही जो टर्म्स हैं ये एक्चुअली एटमॉस्फेयर की डिफरेंट कंडीशंस को बताती हैं जो हमारे आसपास है और जिसे हम कहते हैं वेदर. डू यू नो द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, देयरफॉर द सन सीम्स टू राइज फ्रॉम द ईस्ट. अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जो सन है वो ईस्ट से राइज कर रहा है. Weather changes. All changes in the weather take place because of the sun. The sun and the earth play an important role in the change of weather. The sun gives us heat and light. The earth rotates on its axis like a spinning top. It causes a day and night. The axis of the earth is tilted. As the earth rotates, one half of it facing the sun gets sunlight. This part has day. The other half of the earth, which is away from the sun, gets no light. This part has night. आप देखिए आपके जो चेंजेस होते हैं वेदर में वो किसकी वजह से होते हैं? सन की वजह से. आपके जो सन और अर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेदर के चेंजेस में. सन आपको हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है जिसकी वजह से आपके डे एंड नाइट होते हैं. तो एक्सिस जो होता है अर्थ का वो टिल्टेड होता है, तो जैसे अर्थ रोटेट करती है तो हाफ फेस में सन लाइट होती है जहाँ पे डे होता है और जिस पार्ट में सन लाइट नहीं होती वहाँ पे नाइट होता है. The revolution of the earth around the sun causes seasons, while revolving the parts of the earth that are nearer to the sun have hotter and longer days or have summer. The other parts that are away from the sun have colder and shorter days, winter. Earth का जो revolution होता है sun के around, उसकी वजह से आपके seasons होते हैं. The sun causes the wind to blow. Blowing of wind takes place with the help of the heat of the sun. अब जो हवाएं चलती हैं वो actually sun की heat की वजह से होता है. When the air gets heated up due to the sun, it becomes lighter. The warm air rises up, cool air, which is heavier, then comes in to take its place. This movement of air causes winds. The sun heats up the water on the earth and changes it into water vapor. The amount of water vapor in the air is called humidity. देखिए sun की heat की वजह से जो आपकी air है वो गर्म होती है और वो लाइटर हो जाती है, तो जो वार्म एयर है वो राइज अप होती है और उसकी जगह लेता है ठंडी हवाएं. तो इस तरह से एयर की वजह एयर का मूवमेंट होता है और एयर के मूवमेंट से फिर आपकी विंड्स होती हैं. इसी तरह से सन जो है वाटर को इवेपोरेट करता है. कैसे? वाटर हीट अप होता है, देन वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, तो उसे इवेपोरेट करने में हेल्प करता है. तो जो अमाउंट होता है वाटर वेपर का एयर में उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी. Air is all around us. It is a mixture of gases such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide and water vapors. Air also contains dust, smoke and germs. The blanket of air all around the earth is called atmosphere. Moving air is called wind. When a strong wind blows, it is called gale. Wind that blows gently and lightly is called breeze. A very strong wind is called storm. When storm occurs with lightning and thunder, it is called thunderstorm. Wind also decides the weather of a place. देखिए एयर हमारे चारों तरफ है और एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर. इसके अलावा एयर में आपके डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, स्मोक भी होते हैं एंड जर्म्स भी होते हैं. और द ब्लैंकेट ऑफ एयर जो हमारी अर्थ को सराउंड कर रहा है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. मूविंग एयर को कहते हैं विंड. जब बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड चलती है उसे हम बोलते हैं गेल. जब विंड बहुत ही जेंटली और लाइटली चलती है उसे हम कहते हैं ब्रीज. और बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड को कहते हैं हम स्टॉर्म. Sea breeze. Land absorbs heat faster than the sea. Air above the land becomes hot. Air above the sea remains cold. Hot air above the land moves up and cold air from sea moves to take its place. This movement of air from sea to the land during daytime is called sea breeze. देखिए क्या होता है कि लैंड जो है हीट को जल्दी एब्जॉर्ब करती है
सी के कंपैरेटिवली। तो जो लैंड के ऊपर की जो एयर होगी वो हॉट होगी, ओके, और जो सी के ऊपर की जो एयर होगी वो क्या होगी, ठंडी होगी। तो हॉट एयर क्या करते हैं, हॉट एयर क्योंकि लाइटर होती है वो ऊपर मूव करेगी, जो कोल्ड एयर है वो सी से हॉट एयर की तरफ आएगी, यानी हॉट एयर की स्पेस जो खाली होगी उसे ऑक्यूपाई करेगी। तो ये जो मूवमेंट होता है एयर का सी टू लैंड दिन के टाइम पे, इसे हम कहते हैं सी ब्रीज। लैंड ब्रीज, land loses heat faster than water. At night, air above the land cools faster. Warm air above the sea rises up and cold air from the land takes its place. This movement of air from the land to the sea at night is called land breeze. अब इसी तरह से क्या होता है कि लैंड जो अपनी हीट बहुत जल्दी लूज कर देती है वाटर के कंपैरेटिवली। तो रात को क्या होता है कि जो लैंड के ऊपर की जो एयर होती है वो आपकी कूल होती है। तो वार्म एयर आपकी कहाँ होगी, सी के ऊपर, तो वो ऊपर राइज करेंगी, और फिर जो ब्रीज है वो कहाँ से चलेंगी, आपकी जो विंड है वो लैंड से सी की तरफ चलेंगे। तो इसीलिए इसे कहते हैं लैंड ब्रीज। Evaporation. The water changes into water vapor by the heat of the sun. The amount of water vapor in the air is called humidity. The process of change of water into water vapor on heating is called evaporation. Evaporation of water takes place at a faster rate when temperature is high, exposed surface area is large, strong wind is blowing, air is dry. Evaporation आपको जानते ही हैं, जब वाटर वेपर में चेंज हो जाता है सन की हीट की वजह से, उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। और कितना अमाउंट एयर वाटर वेपर का प्रेजेंट है एयर में, उसे कहते हैं ह्यूमिडिटी। अब इवेपोरेशन जो है वो फास्टर रेट में होता है जब ये सारी कंडीशंस होंगी, यानी आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, आपका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है, या फिर एयर ड्राई है। Activity time. Takes two same kinds of wet cloth, dry one piece directly under a fan, one away from it. Observe which piece of cloth dries faster. Why? Take two bowls containing equal amounts of water, pour the water from one glass on the floor and keep the other glass next to it on the floor. Observe which evaporates faster. Why? आपने दो कपड़े लेने हैं, सेम तरह के गीले कपड़े, एक को आप फैन के नीचे रखिए और एक को दूर रखिए। तो कौन सा पहले ड्राई होगा, जिसे आपने फैन के नीचे रखा है। इसी तरह से आपने दो बोल लेने हैं, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लेना है। एक बोल का पानी आपने सरफेस पे आप उसे डालेंगे फ्लोर पे, और एक को आप वैसे ही रख देंगे फ्लोर पे। इसके बाद आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा इवेपोरेट होगा जल्दी। तो कौन सा होगा, जो आपने फ्लोर पे स्पिल किया, क्योंकि उसका जो एरिया था वो लार्जर था। Condensation. The change of water vapor into water on cooling is called condensation. अब condensation evaporation का just opposite है। water vapor जब water में change हो जाते हैं cool होने पे, तो that is called condensation. Activity. Take a chilled water bottle from the refrigerator and leave it on the table for a few minutes. Tiny drops of water will appear on the outside of the bottle because water vapor in the air condenses on the cool surface of the bottle. आप एक चिल्ड वाटर बॉटल निकालिए रेफ्रिजरेटर से और टेबल पे कुछ मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। आपको थोड़ी देर बॉटल के बाद छोटे छोटे वाटर के ड्रॉप्स नज़र आएंगे। तो ये कहाँ से आए, एक्चुअली जो वाटर वेपर थे एयर में वो कंडेंस हो गए, जो बॉटल की कूल सरफेस से मिले। Water cycle. Evaporation takes place continuously due to the heat of the sun from water bodies on the earth. The air along with water vapor gets heated and rises. As it goes higher, the air is cool. Thus, the water vapor condenses into tiny drops of water. Millions of tiny drops of water stick together to form clouds. When clouds become bigger and heavier, they fall on the earth's surface as rain. Thus, the change of water to water vapor and water vapor back to water in nature is called water cycle. Evaporation अर्थ में चलता ही रहता है कंटिन्यूसली सन की हीट की वजह से। ओके तो जैसे आपका जो एयर है वाटर वेपर के अलावा, सॉरी यार, thus the change of water to water vapor and water vapor back to water in nature is called water cycle. आपका जो evaporation है वो कंटिन्यूसली नेचर में चलता रहता है। सन की हीट जो है वाटर बॉडीज़ को वार्म करती हैं, देन वार्म एयर ऊपर जाती हैं। ओके उसके बाद ऊपर जो वार्म एयर है वो कूल होके कंडेंस होके वापस नीचे बारिश बन के आ जाती हैं। तब ये जो प्रोसेस है दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल. In nature, condensation can be seen in the form of frost, hail, dew, fog and snow. Dew. When water vapor in the air condenses to drop of water and coming in contact with cold things like grass, flowers, leaves, etc., dew is formed. It is formed in winter. Frost. In extreme winter, the earth becomes very cold. Its surface becomes colder than ice. The dew drops freeze to form tiny ice crystals. This is called frost. The frost causes great damage to crops. अब आपका जो कंडेंसेशन है वो आपका होता रहता है, जैसे कि आपका ड्यू है, जो वाटर वेपर होते हैं हवा में वो कंडेंस होके बन जाते हैं पानी. जब वो
बहुत सारी ठंडी चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे ग्रास है, फ्लावर्स है, लीव्स, उसमें आपको छोटे छोटे ड्रॉप्स जो नज़र आएंगे, एक्चुअली वो ड्यू होता है। इसी तरह से फ्रॉस्ट क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो अर्थ बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। अब इसका सरफेस जो है आइस से भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो जो ड्यू ड्रॉप्स होती हैं वो फ्रीज होकर छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स बनाती है, जिसे कहते हैं फ्रॉस्ट। और फ्रॉस्ट की वजह से क्रॉप्स को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। Fog. Sometimes water vapor condenses on dust and small particles to form clouds very close to the ground. This is called fog. In this situation, one is not able to see properly even nearby things. The visibility is poor on a foggy day. अब fog तो आपको पता ही है, जब वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं डस्ट या स्मोक पार्टिकल में तो क्लाउड्स बनते हैं, और ये क्लाउड्स बनते हैं ग्राउंड के बहुत क्लोज। इसकी वजह से, इस सिचुएशन की वजह से आपको प्रॉपरली नहीं दिखता है, मतलब नियर बाय थिंग्स जो हैं वो प्रॉपरली नहीं दिख पाती और विजिबिलिटी बहुत ही पुअर हो जाती है। रिमेंबर हाउ इज द फॉग फॉर्म्ड? यू नो दैट डस्ट पार्टिकल्स फ्लोट इन द एयर. When moist air comes into contact with cold air, it gets cooled. Some of the water vapor in the air condenses on these particles and forms fog. As soon as the sun shines, the water evaporates and the fog disappears. अब fog कैसे बनता है? आपको पता है जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो एयर में कुछ सस्पेंडेड होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं, तो जो मॉइस्ट एयर कांटेक्ट में आती है कोल्ड एयर की तो ये कूल हो जाती है, तो कुछ जो वाटर वेपर है एयर में वो कंडेंस होते हैं इन पार्टिकल्स में और फॉग बनता है। और जैसे ही सन शाइन करता है तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है और फॉग डिसअपियर हो जाता है। मिस्ट. मिस्ट इज टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैंगिंग इन द एयर. इट इज लाइटर देन फॉग. Mist often forms when warmer air over water suddenly encounters the cooler surface of land. मिस्ट भी आपके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के जो एयर में हैंग करते हैं और ये फॉग से भी ज़्यादा लाइटर होते हैं। Hail. When raindrops are falling towards the earth and the wind is blowing at a greater speed, it carries the raindrops upward into the colder region. They freeze and become hail. They fall on the earth as hailstones. Hailstones are harmful for crops and animals. जब रेन ड्रॉप्स अर्थ में पड़ रही होती हैं तो विंड ब्लो करती है बहुत ही हाई स्पीड से, और ये क्या करती है कि रेन ड्रॉप्स को वापस कोल्डर रीजन में लेके जाते हैं जहाँ पे ये फ्रीज हो जाते हैं और हेल बन जाते हैं, और उसके बाद फिर वो अर्थ पे गिरते हैं हेल स्टोन। तो हेल स्टोन्स जो होते हैं ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं क्रॉप्स और एनिमल्स के लिए। स्नो. व्हेन वाटर वेपर फ्रीजेस इन द एयर इट फॉर्म्स टाइनी फ्लेक्स ऑफ आइस कॉल्ड स्नो. Snowfalls takes place mainly on hill stations in winter. जब वाटर वेपर एयर में फ्रीज हो जाते हैं तो ये छोटे छोटे फ्लेक्स बन जाते हैं आइस के, जिसे बोलते हैं स्नो, और स्नो आपको पता है आपके हिल स्टेशंस पे विंटर्स में होते हैं। वाटर. वाटर इज अ वंडरफुल लिक्विड. 70% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर. It is found in ponds, lakes, rivers, seas and oceans. It is also found underground and even in air. Most of the water available on the earth is unfit for human consumption because it gets polluted from wastes from our houses, factories, etc. and also contains germs in dirt. वाटर आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। अर्थ का जो 70% सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है। ये आपकी बहुत सारी जगहों पे मिलता है जैसे पॉन्ड्स, रिवर्स, ओशन, सी, लेकिन ज़्यादातर जो पानी अवेलेबल है अर्थ पे वो कंजप्शन के लिए अनफिट है, क्योंकि ये घरों का जो वेस्ट होता है या फैक्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है उसकी वजह से पल्यूट हो जाता है और इसमें जर्म्स और डर्ट भी काफ़ी सारे होते हैं। Purification of water. Drinking pollute water can make us sick. We should drink only clean and germ-free water. Water that we get from taps can be dirty and impure. Thus, water used for drinking and cooking needs to be purified. Insoluble impurities present in water can be removed by sedimentation, decantation and filtration. अगर हम पल्यूट वाटर पियेंगे तो उससे हम बीमार हो सकते हैं, तो जो भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वाटर में उनको प्योरीफाई किया जाता है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। Sedimentation is the process of letting the insoluble impurities present in water settle down at the bottom of the container containing water. The pouring out the clear water into another vessel after sedimentation is called decantation. देखिए आपका क्या होता है कि पानी को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और उसमें जो इंसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। उसके बाद जो क्लीन वाटर होता है उसे हम दूसरे ग्लास में पोर करते हैं, तो इसे कहते हैं डिकेंटेशन। फिल्ट्रेशन इज कैरीड आउट इन द लेबोरेटरी यूजिंग अ फिल्टर पेपर. Muddy water is made to pass through a filter paper that has tiny pores through which only water can pass. Insoluble impurities are left on the filter paper. अब फिल्ट्रेशन इसके बाद होता है, ये आपका लेबोरेटरीज में होता है फिल्टर पेपर का यूज़ करते हुए। अब क्या होता है, फिल्टर पेपर में जो पानी होता है वो आपका नीचे आ जाता है और जो मड या जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो आपके फिल्टर पेपर पे रह जाती हैं। Soluble impurities present in water can be removed by the following ways.
by using water filters, by boiling water as boiling kills germs, by adding chemicals like chlorine. This process is called chlorination. अब जो soluble impurities हैं उन्हें हम कैसे हटा सकते हैं? वाटर फिल्टर का यूज़ करके, या फिर पानी को अगर बॉयल करके, या फिर उसमें एक क्लोरीन केमिकल होता है वो डाल के, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोरीनेशन. Do you know the level of underground water is called water table? अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है उसे वाटर टेबल कहते हैं. Save water. Fresh water is available on earth in a limited amount only, so we must save it. Let us save water by watering the plants with a bucket of water instead of a hose pipe, washing the car or scooter with a bucket of water instead of a water pipe, not wasting too much water on festivals like Holi. देखिए, फ्रेश वाटर अवेलेबल जो अर्थ पे है वो लिमिटेड अमाउंट में है, तो इसीलिए हमें इसे सेव करना चाहिए. और सेव हम कैसे करेंगे? जैसे प्लांट्स को अगर आपने वाटर करना है तो आप बकेट का यूज़ कीजिए. इसी तरह से जब आप कार या स्कूटर वॉश करें तब भी आप बकेट का यूज़ कीजिए. और होली जैसे फेस्टिवल्स में आपको पानी ज़्यादा नहीं वेस्ट करना चाहिए. लेट्स रिमेंबर, द सन कॉजेज ऑल वेदर चेंजेस. हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर एंड सो इट राइजेज अप. The sun causes the change in the state of water in nature, forming clouds, rain, hail, snow, dew, frost and fog. सन की वजह से वेदर चेंजेस होते हैं. आपको पता है हॉट एयर लाइटर होती है कोल्ड एयर से, और जो सन की वजह से वाटर के स्टेट में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से आपके क्लाउड्स बनते हैं, बारिश होती है, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, ये सब बनते हैं. Evaporation is a change of water to water vapor on heating. Condensation is a change of water vapor to water on cooling. Evaporation का मतलब है water का water vapor में change हो जाना heating पे, and condensation water vapor का water में change हो जाना on cooling. Water can be purified by sedimentation and decantation, filtration and boiling. Water को हम purify कर सकते हैं sedimentation, decantation, filtration and boiling से. So children, I hope आपको ये chapter समझ आया होगा. इसकी practice अब आप खुद से करेंगे.